In today's episode, we are going to dive deep into the spaces we live in, the furniture we use, and how it affects our bodies with none other than Dr. Garima, a seasoned physiotherapist who is practicing for the last 13 years. She heads Mind Body Fit Physiotherapy and Wellness that has centers across Pune and also caters to people having issues across the globe with their online consultation. Hello, ma'am. Welcome. So, let me begin with the main question that everyone has. What is posture in a layman's language? So hi Trilochan. So first of all, thank you so much for inviting me here. And it is actually a very good initiative taken by you and your company. It will definitely help a lot of people overcoming a lot of posture issues because it is nowadays a very common practice and issues people are facing in their day-to-day activities. So coming back to your question, so what is exactly posture? So in layman language, it is how your body is aligned while doing all the movements like movements and sitting, standing, etc. So in short, how your muscles, your joints, your spines are placed while doing any activity for optimum balance and so that your joints and muscles are less strained. मतलब एक गुड पॉस्चर वो है इन शॉर्ट कि जो एक्वायर करते वक्त आपको कोई पेन नहीं होना चाहिए, डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए. इट शुड बी कंफर्टेबल एंड इट शुड बी innate to you. So, ma'am, how does good posture actually affect our day to day life and our well being? Can you please elaborate on this? Yeah, sure. It's actually a very good question. So, if you are having good posture, so first of all, you will prevent any kind of pain which is related to muscles and joints of the body. And then you will eventually have, if you're not having any pain, so it will eventually lead to good mood and good productivity. And your muscles will not be fatigued, so your body will support your work. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोलूँ तुम्हें कि यू आर हैविंग नेक पेन, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग नेक पेन एंड तुम्हें पूरे दिन ऑफिस का काम करना है अपना. सो वो नेक पेन के साथ में तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कैसी रहेगी, तुम्हारा मूड कैसा रहेगा. इफ़ यू आर हैविंग मूड नेक पेन, सो अभी कोई अगर तुम्हारा एम्प्लॉय भी आके कहता है कि सर ये प्रॉब्लम हो गया है, तो यू विल गेट इरिटेटेड, राइट. एंड इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ पेन, सो योर डे विल गो स्मूथ. सो इवेंचुअली इट improves your productivity also. So it has a lot of good effects and you can in fact prevent many issues like for example slip disc issue is there or some low back issues, neck pain. They get developed over period of time if you are continuing the pad posture. So if you are attaining good posture, so you will not have these issues. And in fact it improves your overall functioning of the body. Functioning like basic thing, if I talk about breathing, सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक अच्छा पॉस्चर से ब्रीदिंग कैसे अफेक्ट हो सकती है. तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव राउंडेड शोल्डर्स एंड यू आर सिटिंग स्लाउचिंग लाइक दिस, सो आपके डायफ्राम पे प्रेशर आता है. सो इवेंचुअली आपके जो एक्सपेंशन होना चाहिए ब्रीदिंग में, जैसे आप अगर आप स्ट्रेट बैठ के अगर आप इफ़ यू आर टेकिंग ब्रीदिंग, सो यू विल बी एबल टू टेक ब्रीथ मोर इन अ बेटर वे. एंड इफ़ यू आर स्लाउचिंग तो आपका वो इवेंचुअली इट इज़ नॉट कि एक दो दिन में अफेक्ट होता है बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर मंथ्स एंड ईयर्स इट गेट्स अफेक्टेड. देन डाइजेशन, इनफैक्ट डाइजेशन ऑल्सो, अभी कई लोग को लगेगा डाइजेशन कैसे अफेक्ट हो सकता है पॉस्चर से. तो अगेन इफ़ यू आर लाइक सिटिंग इन स्लाउचिंग पोजिशन, सो आपके स्टमक पे भी प्रेशर आता है. सो उससे भी इट में आपके जो बाइल जूसेस वगैरह निकलते हैं. तो इफ़ यू आर हैविंग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, इफ़ यू आर लाइक सिटिंग होल डे एंड ईटिंग एट वन प्लेस, तो आपका क्या है, मूविंग नहीं है, तो आपका जो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगा, आपका डाइजेशन इफेक्ट होगा बिकॉज यू आर सिटिंग एट वन प्लेस. तो योर मसल्स, डाइजेस्टिव मसल्स आर ऑल्सो नॉट मूविंग, योर सॉफ्ट टिश्यूज आर नॉट मूविंग. So a good posture can improve your digestion also. It can improve your breathing. It can help in prevention of any kind of pains and ailments and reduce strain on your joints also. स्लाउचिंग से याद है, मैं ठीक बैठा हूँ ना. Yes. सो मैम, कैन यू टेल अस कि हम ऐसा क्या करते हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो एक बैड पोस्चर की तरफ हमें लेके जाता है. आप इस पे अगर आप और बता सकें कि हमें क्या नहीं करना चाहिए दैट लीड्स टू अ बैड पोस्चर एंड अगेन गिव अस इश्यूज इन द लॉन्ग रन. इफ यू कैन जस्ट एलैबोरेट अ लिटिल बिट ऑन दैट प्लीज. Yes, definitely. So most common habits are prolonged sitting. So for example, people are coming to me for neck pains, back pains, and their life is sedentary because
उनका जॉब ही ऐसा है, दे आर वर्किंग इन IT कंपनी, सो उनको पूरे दिन बैठ के ही काम करना है, सो दे डोंट हैव एनी चॉइस, उनको कहीं बाहर फील्ड विजिट पे नहीं जाना है, उनको ऑफिस में 4 दीवारी में ही काम करना है, राइट। तो प्रोलॉन्ग सिटिंग, देन प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, कई सारे प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत घंटों खड़े रहना पड़ता है। देन कम्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशंस जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता है, चलना बहुत पड़ता है। देन बहुत सारे हैं जिसमें फील्ड ट्रिप्स बहुत होती हैं, तो ड्राइव बहुत करना पड़ता है। अब ड्राइविंग अगेन, इफ़ यू आर ड्राइविंग 2 व्हीलर, तो 2 व्हीलर पे यू डोंट हैव एनी बैक सपोर्ट एंड दिस थिंग, तो वहाँ पे वो अफेक्ट करेगा। इफ़ समबडी इज़ हैविंग बैक पेन एंड वो 2 व्हीलर बहुत ज़्यादा चलाएगा, तो फिर उसको चैलेंज आने वाला है, उसका पेन और बढ़ने वाला है। एंड 4 व्हीलर भी अगर है तो भी प्रोलॉन्ग, अगर समबडी इज़ नॉट टेकिंग ब्रेक्स इन बिटवीन, सो वहाँ पे भी उसको इवेंचुअली अगर 8-10 घंटे ड्राइव कर रहा है तो उसको पेन होने ही वाला है। सो दीज आर कॉमन थिंग्स। देन हाउ वी आर यूजिंग आर मोबाइल, सो मोस्टली जैसे मोस्ट कॉमन है कि हम मोबाइल ऐसे यूज़ करते हैं, सो वी आर जस्ट बेंडिंग आवर नेक एंड डूइंग मोबाइल्स एंड यूजिंग दीज थिंग्स। देन लैपटॉप है, अभी लैपटॉप को हम कहते ही लैपटॉप हैं क्योंकि लैब पे रख के काम करते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड पॉस्चर टू डू। सो वो लैपटॉप अगर हम लैब में रख के काम कर रहे हैं, देन अगेन वी आर बेंडिंग आवर नेक एंड वाइल एंड वी कैन स्लाउच ऑल्सो। कई लोग जैसे स्लाउच करके मोबाइल देख रहे हैं या फिर डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, I कई lie लोग, down and use हाँ, यस यस, सो लॉट ऑफ पीपल जैसे वर्क फ्रॉम होम है, नो बडी इज़ वॉचिंग यू, सो पीपल आर लाइंग डाउन एंड डूइंग देयर वर्क, पेट पे लेट के काम कर रहे हैं, One of ज़मीन में them. लेट के काम कर रहे हैं, सोफे पे बैठ के काम कर रहे हैं, फिर बहुत देर मांडी डाल के बैठे हुए हैं, क्रॉस लेग बैठे हुए हैं। सो लॉट ऑफ पॉस्चर। सो 1-2 दिन में दर्द नहीं होगा आपको, लेकिन इवेंचुअली अगर आप यही सब चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, यही हैबिट्स, बिकॉज दीज आर हैबिट्स, बिकॉज these are your comfort zones, right? Because and आपको पता भी नहीं चलता है and you are habitual of it, but over a period of time that may lead to bad posture and your pains can start with. ये आपने जितनी भी चीज़ें बोले मैं सभी करता हूँ. So these are the common issues, common habits people have. These are some of the examples. The list is endless. So ma'am, now can you tell us कि डे टू डे लाइफ में रेगुलर बेसिस पे आपके क्लिनिक्स में या आपके ऑनलाइन कंसल्टेशंस में आप किस टाइप के पेशेंट्स को देख रहे हैं कि ये बहुत कॉमनली इश्यूज हैं जो आपने देखे हैं या कंडीशंस हैं कि काफ़ी सारे पेशेंट जो है सेम ही प्रॉब्लम के वजह से आपके पास आ रहे हैं फॉर कंसल्टेशन? कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट दैट? Yes, definitely. So I'll be using layman terms, common terms. So it is starting from your neck to toe. So it can start with your neck pain, then your shoulder pains, then upper back pain, then lower back pains, then elbow pain, shoulder pain, then your knee pain, hip pain, ankle pain. So the list is endless. So it may affect all of the joints of your body and muscles. So it can be from neck to toe. All kinds of pains are most common. But if you want me to list down the top priority pains, so it will be neck pain and back pain. सो आई थिंक मेरे पास अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं तो 70% पेशेंट्स आर विद द कंप्लेंट ऑफ नेक पेन एंड बैक पेन. सो द कॉजेज मे वेरी, बट द कॉमन सिम्टम इज नेक पेन एंड बैक पेन. एंड ये क्या एज ग्रुप के हैं सबसे ज़्यादा? आप कौन से एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा कंसल्ट करते हैं? या सो दैट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. टू माई सरप्राइज, माई 80% OPD is of young people. So by young people, I meant less than 45 years of age. So earlier, if I think of 13 years back when I started my practice, so my 70% OPD was of old age people. So, but ironically, now my 70 to 80% patients are young because of the major cause is sedentary lifestyle and posture issues. So ma'am, in your experience, what are the most commonly made mistakes that lead to a bad posture or to lead to chronic pains? क्या आप बता सकते हैं कि पहले तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए कि acute pain क्या होता है और chronic pain क्या होता है, and if you can please tell us कि वो उसके regular basis पे हम ऐसा क्या करते हैं कि it leads to that? Yes, so actually ये word बहुत common है. कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि chronic, अभी कई बार डॉक्टर्स लिखते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में कि एक्यूट दिस थिंग एंड क्रॉनिक दिस थिंग. सो बेसिकली एक्यूट इज़ समथिंग विच इज़ न्यू थिंग. मतलब फॉर एग्जांपल कि कल रात को आप गलत पोस्चर में सोए और सुबह आपको पेन हो गया, सो दैट इज़ एक्यूट कि नया पेन है. या फिर आपको इंजरी हुई तो आपको स्प्रेन हो गया, फॉर एग्जांपल एंकल स्प्रेन हो गया, स्वेलिंग आई, सो दैट इज़ एक्यूट थिंग कि जो नया नया इंजरी हुआ, नया नया पेन है. देन क्रॉनिक मीन्स कि जब वो पेन परसिस्ट होता है कि for maybe 1 month, then 2 months, 3 months. I have patients who are having pain since last 7-8 years, even 10 years also. I have seen patients. So लोग उसको accept कर लेते हैं कि this is now part of my life.
So chronic pain is something like that कि which is persisting for a longer period of time, and plus if it is recurring मतलब for example आप मेरे पास आए नेक पेन के लिए, ठीक है, मैंने आपको फिजियोथेरेपी दी, ट्रीटमेंट दिया एंड आपका नेक पेन ज़ीरो हो गया, आप 1 महीने बाद वापस आ गए मेरे पास, है ना, या फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद वापस आ गए, फिर से आपने ट्रीटमेंट लिया या आपने कुछ भी ट्रीटमेंट होम ट्रीटमेंट लिया, मेडिसिन खा ली एंड ठीक हो गया, वापस अगेन फिर 2 महीने 3 महीने बाद हो गया. सो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्रॉनिक पेन कि जहाँ पे क्योंकि वी आर नॉट एड्रेसिंग, वी एज इन मी एंड यू आर नॉट एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ द पेन. सो अगर हम रूट पे ठीक नहीं करेंगे, जैसे पेड़ है, पेड़ को अगर हम जड़ में पानी नहीं देंगे तो पेड़ कैसे उगेगा, अगर हम पत्तियाँ गीली कर दें तो थोड़ी पेड़ ग्रो करेगा. सो इट्स लाइक दैट कि हम रूट कॉज पे काम नहीं करें, रूट कॉज हमने ठीक नहीं किया तो वो पेन बार बार आपको आता रहेगा. सो दैट इज़ क्रॉनिक पेन. अभी मोस्ट कॉमन हैबिट्स अगेन जैसे हमने अभी बात करी कि प्रोलॉन्ग सिटिंग इज़ वन ऑफ द हैबिट्स कि बहुत देर एक जगह काम कर रहे हैं. अब पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम तो वो कमरा बंद कर लिया उन्होंने एंड वो काम कर रहे हैं लगातार दे आर डूइंग, सो दे आर नॉट गेटिंग अप, सो प्रोलॉन्ग सिटिंग, सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स. देन बहुत देर खड़े होके भी काम कर रहे हैं, बीच में ब्रेक नहीं ले रहे हैं, या फिर स्लीपिंग पॉस्चर गलत है. सो क्योंकि आप जब भी सोते हो रात में तो एटलीस्ट द विंडो इज़ 8 to 12 डिपेंडिंग ऑन कि आप कम से कम 8-10-12 घंटे एक पॉस्चर में हो. अगर वो पॉस्चर आपका ख़राब है, आपकी गलत तरीके से सोने की हैबिट है, सो फिर आपको इवेंचुअली पेन होने वाला है ना. देन लैक ऑफ एक्सरसाइजेज, आजकल लोगों को सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उनके पास टाइम नहीं है वर्कआउट करने का, है ना. सो वो पूरे दिन बैठ के काम कर रहे हैं एंड मसल्स को फिर स्ट्रेंथनिंग, मसल में ताकत कहाँ से आएगी भाई. स्ट्रेंथ इज़ समथिंग कि आपको वो गेन करना पड़ता है एंड देन मेंटेन करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि मसल स्ट्रेंथ एक बार आपने कर ली और वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी. बेसिक स्ट्रेंथ रहती है, बट किसी भी दिन आपने एक्सर्शन लिया, किसी दिन ज़्यादा काम किया तो वो ज़्यादा काम करने के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आपके पास नहीं है. सो इसीलिए फिर जब भी एक्सर्शन होता है तो लोगों को पेन होता है. कितने लोग हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैकिंग, अभी कोई अगर उठ के ट्रैकिंग पे चला गया उसको उस दिन पेन हो जाएगा, बट जो रेगुलर ट्रैकर है या रेगुलर रनर है या फिर रेगुलर एक्सरसाइज करने वाला है, वो अगर ट्रैकिंग करेगा उसके लिए मज़ा आएगा, उसको कुछ नहीं होगा, ही विल एंजॉय दैट ट्रैकिंग. एंड कोई नया है कि मैं आज उठ के चली गई कि अरे चलो जोश में ट्रैकिंग कर लिया, सो देन आई विल एंड अप विद पेन बिकॉज माई बॉडी डजंट हैव दैट हैबिट एंड प्लस एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू डू दैट एक्स्ट्रा एक्टिविटी, है ना. सो लैक ऑफ एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द रीजन्स. देन फूड हैबिट्स, अब आज की डेट में डेफिशिएंसीज आर वेरी कॉमन. आप 10 लोगों का विटामिन डी B12 आप टेस्ट कराएंगे, 8 लोगों का कम ही निकलने वाला है बिकॉज पीपल आर नॉट ईटिंग वेल, है ना. सो डेफिशिएंसीज, अभी विटामिन मिनरल्स का रोल मेन होता है, दे आर द साइड हीरोज़, वो आपको हीलिंग में हेल्प करते हैं. अभी जैसे पहले ज़माने में होता था कि छोटे मोटे इश्यूज़ होते थे अपने आप ही ठीक हो जाते थे, आजकल वो ठीक नहीं हो रहे हैं. उसका सबसे कॉमन रीज़न क्या है, जबकि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन बॉडी खुद हील ही नहीं कर रही है ना. क्योंकि आप एक तो ट्रिगर कर रहे हो पेन, यू आर नॉट अटेंडिंग टू द पेन, एंड दूसरा आपके बॉडी में डेफिशिएंसी है तो बॉडी के अंदर ताकत ही नहीं वो हील करने की, तो हीलिंग कैसे होगी. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस. सो दीज आर मोस्ट कॉमन रीजंस. एंड आई थिंक पोस्ट कोविड जब से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ज़्यादा हुआ है, I've seen these issues increasing, I think, on a regular basis because I've seen people work sitting on their beds. I don't know how they work. बेड पे बैठ के काम करते हैं एंड ज़मीन पे बैठ के काम करेंगे, लेट के. आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क, दो आई एम वन ऑफ देम एट टाइम्स. बट बेड पे बैठ के काम करना एंड देन अगेन दे कीप कंप्लेनिंग दैट माई बैक इज़ हर्टिंग, माई नेक इज़ हर्टिंग. बट आप बैठे कहाँ हो, बेड पे बैठे हो, तो पोजीशन चेंज नहीं करनी है बट आपको कंप्लेन करना है कि ये दुख रहा है, बैक दुख रही है, नेक दुख रहा है. सो आई हैव सीन दिस अ लॉट आफ्टर द होल वर्क फ्रॉम होम कल्चर हैज़ ग्रोन. सो यस, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं. येस डेफिनेटली. सो लाइक यू सेड कि इसमें वन ऑफ द रीज़न इज़ कि पीपल आर नॉट टेकिंग ब्रेक्स इन बिटवीन. काम करें तो घंटों घंटों काम करने हैं, तो उनको ये है कि काम करना है तो पूरा ख़त्म करके ही उठना है. ऐसा नहीं है, आप बीच बीच में ब्रेक लीजिए तो दैट विल इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी. पॉस्चर चेंज हो जाएगा. तो मान लो आप ख़राब पॉस्चर में भी बैठे हो तो फिर आप चेंज करोगे तो दैट विल इम्प्रूव. एंड देन आपका जो है अर्गोनॉमिक्स, हाउ यू आर अर्गोनॉमिक्स मतलब कि व्हाट काइंड ऑफ चेयर्स यू आर यूजिंग. अभी जैसे आप बेड पे काम कर रहे हो या फिर आप चेयर पे बैठे हो, रेगुलर चेयर पे बैठे हो आप, है ना. अगर आपको ऑफिस का काम करना है तो बेटर है, जैसे ऑफिसेज में प्रॉपर सेटअप होता है, आपको ऑप्शन ही नहीं लेटने का, आपको प्रॉपर टेबल चेयर ही यूज़ करनी है. सो दैट इज़ द एक्चुअली गुड पार्ट इफ़ यू आर वर्किंग इन ऑफिस, कि वहाँ पे आपका पॉस्चर ठीक ही रहता है. जो ज़्यादा ख़राब होता है वो घर पे ही ख़राब होता है बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग गुड अर्गोनॉमिक चेयर्स, टेबल्स.
सो ऐसा नहीं है कि ergonomic chairs और tables these are like fancy तो इसलिए यूज़ करना है, but they are more comfortable, they are customized for your needs, है ना? तो उनका वैसे ही बनाया गया है उनको कि दैट विल गिव यू गुड सपोर्ट और आप घंटों घंटों उस पर बैठ पाएंगे, आप काम कर पाएंगे, है ना? So, ma'am, you have patients across various verticals, as in people who are going like office goers and homemakers. So, do you see any common issues between the two, that people who are office goers versus homemakers? येस डेफिनेटली सो इन शॉर्ट कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम सेम रहती हैं। प्रॉब्लम्स मतलब एक हाउसवाइफ है और एक वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे वो आईटी में हो, मैन्युफैक्चरिंग, एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, और एक होम मेकर है जो दिन भर घर पे शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ द होम एंड किड्स। सो दोनों के इश्यूज़, दोनों को नेक पेन हो सकता है, दोनों को बैक पेन हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, नी पेन हो सकता है, एंड दीज आर कॉमन इश्यूज़, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉजेज़ का, मतलब दोनों के रीजंस अलग हैं। आईटी, एक बंदा आईटी में है या फिर बैठ के दिन भर काम कर रहा है तो उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ही इज़ नॉट मूविंग, दैट्स वाई ही हैज़ पेन। एंड द लेडी हु इज़ अ होम मेकर, सो शी इज़ ओवर मूविंग, बिकॉज वहाँ पे मूवमेंट हो ही नहीं रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। सो फीमेल्स का जैसे ये रहता है कि एक बार काम करना शुरू किया तो जब तक ख़त्म नहीं होगा वो बैठेंगे ही नहीं, मतलब सुबह उठी तो वो पूरा उनको सब कुछ सारे काम एक साथ ही करने हैं। सो वहाँ पे क्या है? ओवर मूवमेंट है, और यहाँ पे क्या अंडर मूवमेंट है। सो दोनों के रीजंस अलग हैं, दोनों को सेम इश्यूज़ हैं, ठीक है, लेकिन दोनों के कारण अलग हैं। तो यहाँ पे ओवर यूज़ हो रहा है, एंड यहाँ पे भी पॉस्चर ख़राब है और यहाँ पे भी पॉस्चर ख़राब है, दोनों जगह पॉस्चर ख़राब है। यहाँ पे सिटिंग पॉस्चर ख़राब है, एंड यहाँ पे अगर होम मेकर है तो उसका काम करने का पॉस्चर गलत है। जैसे किचन में बहुत ज़्यादा बेंडिंग, फॉर एग्जांपल शी इज़ डूइंग लॉट ऑफ बेंडिंग, तो बेंडिंग का तरीका अलग है, उसको वेट्स बहुत उठाने पड़ रहे हैं, कुकर, कढ़ाई एंड वो सामान इधर उधर, ग्रॉसरीज, तो वो हैवी वेट लिफ्टिंग है, तो उसके लिए टेक्निक गलत होती है कई बार, इसकी वजह से पेन होता है। देन इंजरी भी हो सकती है, बट इंजरी भी दोनों में कॉमन है कि दोनों को इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल खेलते वक्त लग गया किसी को, क्रिकेट खेलते हुए, बैडमिंटन खेलते हुए, एंड उसको भी सामान उठाते हुए हो गया, सो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंजरी। तो जैसे स्लिप डिस्क है, दैट इज़ वेरी कॉमन कि आप बेंड करके कुछ हैवी वेट उठा रहे हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल कई लोगों को कहते हैं ना कि अरे हम ये काम कर रहे थे झुक के और एकदम से चमक आई, एकदम से हमारी बॉडी में कट से आवाज़ आई, एंड तब से बैक स्ट्रेट ही नहीं हो रही है, मतलब एंड एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो रहा है। सो दोनों में बैक पेन हुआ, इसको भी इंजरी से हुआ, उसको भी इंजरी से हुआ, बट टाइप अलग है, कॉजेज़ अलग है। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ टू क्योर दैम। अभी दोनों मेरे पास फॉर एग्जांपल आए, है ना, सो दोनों के लिए ट्रीटमेंट थोड़ा सेम रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा। सेम क्या रहेगा? जैसे पेन है तो पेन के लिए वी हैव सम पेन रिलीविंग मशीन्स, स्वेलिंग है तो स्वेलिंग कम करने के लिए मशीन्स होती हैं, तो हम वो मोडालिटीज़ यूज़ करेंगे, दोनों पे सेम मोडालिटी यूज़ करेंगे। और लेकिन फ़र्क क्या आएगा? एक्सरसाइजेस का फ़र्क आएगा, दोनों के लिए प्रिकॉशंस का फ़र्क आएगा। फॉर एग्जांपल होम मेकर है, उसका मान लो 1-2 साल का बेटा है या बच्चा है, तो ही इज़ मूविंग अराउंड इन द ग्राउंड इन द होम, उसको उठाना पड़ रहा है, बार बार लिफ्ट करना पड़ रहा है, या फिर घर में शी इज़ कुकिंग तो हैवी वेट्स उठाने हैं, नीचे से प्लेट बार बार निकालनी है, तो उसको मैं मॉडिफिकेशन क्या दूंगी लॉन्ग टर्म में कि आप बेंड कर रहे हो तो बेंड आप स्पाइन से ना बेंड करके यू कैन बेंड ऑन योर नीज एंड देन डू द वर्क। या फिर जैसे मोस्ट कॉमन टिप मैं देती हूँ कि आप जैसे फीमेल से होम मेकर से कि आपको किचन में जो सामान बार बार लगता है वो आप नीचे मत रखो, ऊपर रखो। सो दैट्स द सिंपल थिंग विच इज़ डूएबल। तो उनके लिए वो मॉडिफिकेशंस मैंने अलग बताए, क्योंकि देखो अभी आप मेरे पास थेरेपी के लिए आए हो, आपका पेन 0 हो जाएगा उसकी गारंटी मेरी है। कितने सेशन में होगा? मे बी 5, 7, 10 सेशन में पेन 0 की गारंटी मेरी है, ठीक है। लेकिन वो पेन बार बार नहीं हो पाए, बार बार वापस नहीं आए, क्रॉनिक में नहीं जाए, इसके लिए मुझे आपको एजुकेट करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा कि त्रिलोचन आपका ये प्रॉब्लम ये है और आपका पेन अभी 0 हो गया है, लेकिन आगे इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो वो मेंटेन कैसे करना है? एक्सरसाइजेज, है ना, एक्सरसाइजेज करना है ताकि टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड प्लस प्रिकॉशंस कि ये एक्टिविटी से किसी को बैक पेन है, वो अगर बेंडिंग करेगा या लिफ्टिंग वेट्स उठाएगा उसको होने ही वाला है। तो अब कोई कहेगा कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है, हम झुके ना, अब कोई फीमेल है, तो उनको फिर मैं ये टिप्स देती हूँ कि आपको बेंड करना है तो पहली बात तो आप फ्रीक्वेंसी कम करो, आप सामान जो बार बार यूज़ होता है ऊपर रखो ताकि बेंड नहीं करना पड़े, और बेंड करना है तो बेंड ऑन योर नीज़, तो मैं उनको टेक्निक बताती हूँ। या वेट्स उठाने हैं, बच्चे को उठाना है, बेबी को कैरी करना है, तो उसको कैसे कैरी करना है। आप सामान लेने गए हो, ग्रॉसरी खरीदने गए हो, तो आपको 15-20 किलो सामान उठाना है, तो कैसे उठाना है। सो आई ट्रेन देम फॉर दैट। एक आईटी प्रोफेशनल है, सो उसका मेन रीज़न क्या है बैक पेन का कि पॉस्चर, तो उसको मैं पॉस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेज बताऊंगी, बैक कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बताऊंगी, एंड उसको सेटिंग का तरीका बताऊंगी कि उसको मैं बोलूँगी भाई बैक पेन है तो देन यू यूज़ अर्गोनॉमिक चेयर विच हैज़ लंबर सपोर्ट।
या नेक पेन है तो नेक सपोर्ट यूज़ करो, या फिर शोल्डर पेन है तो शोल्डर और एल्बो का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, माउस कैसे यूज़ करना है, लैपटॉप कैसे यूज़ करना है, मोबाइल कैसे यूज़ करना है। मैं लोगों को ये भी सिखाती हूँ, क्योंकि मैं अगर तुम्हें ये बोलूँगी कि त्रिलोचन तुम्हें नेक पेन हो रहा है तो तुम बेंड करना छोड़ दो, नेक मोबाइल मत देखो, तो डू यू लिसन टू मी? Of course तुम not. नहीं सुनने वाले हो। वो तो मैं habit हो वो गई है। हाँ, मैं वो एडवाइस भी नहीं देती हूँ। सो आई बिलीव इन प्रैक्टिकल सोल्यूशन, कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है उसके हिसाब से सोल्यूशन देना। तो मैं ये बताऊँगी कि तुम्हें मोबाइल यूज़ करना है, कितना मोबाइल यूज़ करते हो तुम। कई लोग के मेल्स भी उस पे ही होते हैं, कई लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो मैं उनको बताऊँगी कि मोबाइल यूज़ कैसे करना है, मोबाइल यूज़ करते वक्त पॉस्चर कैसा होना चाहिए। किसी किसी का है कि लैपटॉप बहुत यूज़ करना होता है, तो लैपटॉप कैसे यूज़ करना है। तो आई ट्रेन देम, आई टीच देम द पॉस्चर कि कैसा कैसा और क्या क्या ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा कि अरे बाप रे इतनी सारी चीज़ें कैसे करूँ। दीज आर सिंपल टिप्स, सिर्फ 3-4 चीज़ें जिनकी वजह से, और वो इम्प्रूव करोगे ना तो बिलीव मी इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। मतलब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मेरा यूएसपी यही है कि आई गो इनटू रूट कॉज, एंड मैं ये इंश्योर करती हूँ कि फॉर एग्जांपल तुम मेरे पास नेक पेन के लिए आए हो तो तुम दोबारा नेक पेन के लिए नहीं आने चाहिए मेरे पास। Variety. सो मैं You need variety. नहीं, नॉट, इट इज़ नॉट अबाउट वैरायटी, इट इज़ अबाउट द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, एंड इट इज़ अबाउट आई बिलीव लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। तो कई बार लोगों को लगता है कि हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ये दवाई दे दी, या डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी के लिए गया तो फिजियो ने हमें ये कर दिया, हमारा नेक पेन ठीक हो गया। तो मैं उनको एजुकेट करती हूँ कि ये पेन ठीक हो गया बट मेंटेन आपको करना है, एंड कैसे मेंटेन करना है वो भी मैं उनको बताती हूँ। तो कल को उनको अगर तुम्हें दोबारा नेक पेन होगा तो यू विड नो कि तुम्हारी कहाँ गलती रही है। सो देन इफ़ यू इनकॉर्पोरेट दोज थिंग्स, तो तुम मेरे पास कभी नहीं आओगे नेक पेन के लिए। So it is safe to say this is more like a driving school where you can learn how to drive, but to become a best, like become a good driver, you have to keep practicing and keep driving. डेफिनेटली। So ma'am, can you please tell us that what are the misconceptions people usually have about ergonomics and good posture? Yes, sure. So most common misconception is कि there is a perfect posture. So कई बार लोग मुझे आके पूछते हैं कि मैम परफेक्ट posture क्या होता है, कैसा होना चाहिए। सो आई ऑलवेज से कि छोटे छोटे एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, बट देर इज़ नथिंग लाइक अ परफेक्ट posture. सो द की इज़ यू कीप मूविंग बिटवीन द postures. क्योंकि अभी मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें पूरे दिन ऐसे बैठना है, दिस इज़ द परफेक्ट posture टू सिट, बट यू कैन नॉट सिट, प्रैक्टिकली नॉट डूएबल। सो आई विल टेल यू कि ठीक है, आपको कम से कम ऐसे नहीं बैठना है, या फिर ऐसे नहीं बैठना है, या फिर ऐसे खिसक के नहीं बैठना है। सो दीज आर द एडजस्टमेंट कि ये तुम्हें करना है, एंड कीप मूविंग योर पॉस्चर। देन सेकेंड मिसकंसेप्शन इज़, कई बार लोगों को लगता है कि कई सारे पेशेंट्स मेरे पास आके पूछते हैं कि जैसे मैं बोलती हूँ कि आपको राउंडेड शोल्डर्स है, आपका हेड थोड़ा सा आगे की तरफ है, दैट इज़ कॉजिंग योर नेक पेन। तो लोग मुझे कहते हैं मैम बेल्ट बता दीजिए, आप हमें कोई सपोर्ट दे दीजिए, हम कौन सी बेल्ट यूज़ करें उससे ठीक हो जाएगा। सो आई ऑलवेज से कि बेल्ट या फिर पॉस्चर करेक्टर जो आजकल रहते हैं, सो दे आर बेनिफिशियल, डेफिनेटली दे आर वेरी बेनिफिशियल, बट फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। ठीक है, थोड़े दिन के लिए जब तक आप पेन में हो। फॉर एग्जांपल किसी को टेनिस एल्बो है ना, कोई लेडी है होम मेकर है, टेनिस एल्बो है, तो उसको हम बोलते हैं कि आप, क्योंकि वो काम तो करना ही है ना उसको, तो हम क्या बोलते हैं कि आप टेनिस एल्बो बेल्ट यूज़ करिए, है ना, ताकि आपको काम करते वक्त वो जो पेन बढ़ने वाला था तो पेन बढ़ेगा नहीं। या फिर लो बैक पेन है किसी को, तो हम उसको बोलते हैं लंबर बेल्ट आप यूज़ करो पूरे दिन, और लेटते टाइम निकाल दो आप, तो ताकि आप काम कर रहे हो तो बैक पेन बढ़ नहीं जाए। सो दैट विल सपोर्ट योर मसल्स। तो वो सपोर्ट कब तक चाहिए, जब तक मसल में स्ट्रेंथनिंग नहीं हो रही है। तो बिकॉज एक्सरसाइजेस टेक्स टाइम, स्ट्रेंथनिंग टेक्स टाइम, तो टिल द टाइम वी कैन वर्क ऑन योर स्ट्रेंथनिंग, सो तब तक के लिए बेल्ट्स कैन बी वेरी बेनिफिशियल। बट लॉन्ग टर्म में हमेशा के लिए गारंटी नहीं है कि 10 दिन बेल्ट लगा लिए, 1 महीना लगा लिया और आपका पॉस्चर ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आपको कॉन्शियसली ठीक करना पड़ेगा एंड एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। तो एंड देन लास्ट मिसकंसेप्शन इज़ कि कई बार लोग को लगता है कि अरे ये तो बहुत टफ है, इट्स वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस और कौन करेगा इतना। सो इतना भी टफ नहीं है। इट इज़ अबाउट एक्सेप्टिंग योर इशू। पहली बात कि अगर आपको नेक पेन हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो पहली बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बार बार हो रहा है ना। सो पहले आप एक्सेप्ट करो वो प्रॉब्लम, फिर उसके बाद फिर नेक के लिए जो मैंने एडजस्टमेंट्स बताए, एडवाइस किए मैंने या किसी डॉक्टर ने एडवाइस किए हैं, तो आप वो एडजस्टमेंट्स आप करो। उसके लिए ऐसा नहीं कि आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं, आप जो है रेगुलर जो बैठने का तरीका था उसको थोड़ा चेंज करना है। एंड इट इज़ अबाउट कि आप कॉन्शियसली वो यू कीप ट्राइंग, आप ट्राई करते करते धीरे धीरे वो हैबिट में आ जाता है। वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ 21 दिन करी, 30 दिन, 40 दिन करी, तो दैट बिकम्स योर हैबिट, इट्स लाइक दैट। एंड देन एक्सरसाइजेज, तो एक्सरसाइजेज जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो रेगुलरली एक्सरसाइजेज करते हैं, कई लोग होते हैं जो जिनको एक्सरसाइजेज बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं, तो मैं हमेशा 5-10 मिनट्स एक्सरसाइजेज ही बताती हूँ,
क्योंकि उससे ज़्यादा कोई करेगा ही नहीं। तो या फिर कोई अगर कीन है, इफ़ ही इज़ डूइंग प्रॉपरली, सो देन फिर मैं आई कैन टेल हिम 15-20 मिनट्स एक्सरसाइज ऑल्सो। नहीं तो फिर आपने 10 मिनट्स एक्सरसाइजेज भी करी ना, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। Fair. सो इट इज़ नॉट वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये आना चाहिए कि आपके माइंडसेट चेंज होना चाहिए। कोई भी हैबिट है तो वो तभी होगा जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे, देन यू विल ट्राई वर्किंग अपॉन इट एंड देन इट बिकम्स योर हैबिट। तो ये कहना सेफ है कि बिगेस्ट मिसकंसेप्शन दैट पीपल हैव इज दैट इफ दे स्टार्ट यूजिंग एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बी इट एनी काइंड ऑफ बेल्ट और एनीथिंग, तो उनका जो पेन है वो चला जाएगा और वापस नहीं आएगा। ये सबसे Yes, बड़ा definitely, मिसकंसेप्शन है। definitely. वो टेम्पररी कर सकता है, जो भी आपको हेल्प करना है, इट विल हेल्प यू इन बिकमिंग बेटर, बट देयर इज नो गारंटी दैट इट विल make you not go back to the state you were in. Yes, definitely. So, ma'am, can simple changes like adjusting the seat height or adjusting the armrest in your chair or using the footrest can help in making our body pain better, or at least, give us a better position while sitting? Yes, definitely it can help you a lot. For example, अगर एक चेयर है, जैसे we have lot of chairs, lot of kind of chairs. So अब किसी की, जैसे तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है, ठीक है, सो किसी की होती है कि they are not even 5 feet, है ना। अभी चेयर तो सेम है ना ऑफिस में, तो इसीलिए ये एडजस्टेबल चेयर्स का कंसेप्ट ऐसे ही आया था, बिकॉज हर इंसान की पर्सनालिटी अलग होती है, हाइट अलग होती है, उसके इश्यूज अलग होते हैं। सो एडजस्टेबल चेयर्स पे क्या होता है कि यू कैन एडजस्ट अ हाइट, कि तुम्हारी हाइट ज़्यादा है तो उसके हिसाब से हाइट एडजस्ट, किसी की कम है तो ही कैन रिड्यूस द हाइट। तो द आइडिया इज़ कि आपके फुट फ्लोर पे होने चाहिए, क्योंकि अगर वो हैंगिंग है हवा में तो वो दैट पुट प्रेशर ऑन योर नीज एंड हिप्स, ठीक है। तो अगर वो फुट पे सपोर्टेड हैं तो मसल्स पे स्ट्रेन नहीं आएगा, है ना। सो उसके हिसाब से हाइट एडजस्ट हो जाती है। अभी आजकल ऐसे भी चेयर्स आते हैं जिसमें आर्मरेस्ट भी यू कैन एडजस्ट द हाइट, तो वो भी हाइट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। एंड सो दीज आर द सिंपल एडजस्टमेंट। ऐसे फुटरेस्ट है, अब किसी की हाइट कम है एंड उसका चेयर सबसे नीचे करके भी उसका पैर नहीं पहुंच रहा है, सो वी एडवाइज फुटरेस्ट फॉर दैट, कि फुटरेस्ट रखा है तो एटलीस्ट हिज फुट विल बी सपोर्टेड। देन किसी को जैसे पैरों में स्वेलिंग है तो हम बोलते हैं कि पैर लटका के मत रखो, मतलब नीचे रख के मत। अब ऑफिस में कोई इंसान पैर लंबे करके कैसे बैठेगा, तो दैट टाइम फुटरेस्ट हेल्प्स। कि फुटरेस्ट हम बोलते हैं थोड़ा सा हाई फुटरेस्ट करके उसके ऊपर यू कैन कीप वन लेग, ताकि वो स्वेलिंग बढ़े नहीं। या फिर किसी को ट्रॉमा हुआ है, इंजरी हुई है तो उसको पेन हो रहा है, तो दैट विल सपोर्ट हिज लेग। सो दैट्स हाउ दीज सिंपल चेंजेस कैन हेल्प। So, definitely, we can say that while buying furniture or while buying chairs, you suggest that looking at the adjustability of the chair in terms of seating, in terms of armrest, in terms of neck rest, वो एक important factor है जो सबने देखना चाहिए before buying chairs. Is it safe to say so? या डेफिनेटली, क्योंकि बिकॉज इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग मनी, ऐसा तो नहीं है चेयर फ्री में आ रही है, मतलब ऑफिस में ठीक है, दे आर ऑल्सो पुटिंग इन्वेस्टमेंट इन चेयर्स, तो वाई नॉट ऑफ अ गुड ब्रांड एंड एडजस्टेबल चेयर, सो दैट वो सबके लिए कस्टमाइजेबल हो, सबके लिए बेनिफिशियल हो। So, ma'am, we often talk about only the sitting posture, but what about standing and sleeping posture? Does choosing right furniture also affect that? Yes, definitely. So we'll talk about, if we talk about standing posture, तो standing posture जैसे बहुत लोग का IT में काम है कि पूरे दिन बैठ के काम नहीं कर सकते ना, right? If they have to change posture, so what can be the solution? So we have adjustable tables also nowadays. So same table on which you are working in sitting position, so you can adjust it and you can stand and work. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर मिडिल ऑफ समथिंग, सो मैं अगर बोलूँगी कि नहीं तुम्हें पॉस्चर चेंज करना है बीच में, अभी तुम्हारी मीटिंग चालू है, तो यू कैन नॉट गो एंड वॉक Correct. अराउंड एंड हैव कॉफी एंड दिस थिंग, सो यू कैन जस्ट स्टैंड अप. So in that way your meeting is continued, your work is continued, but your posture gets changed. So that's the common practice nowadays. A lot of IT companies are investing in these adjustable tables. And if you talk about sleeping posture, so that is one of the very important posture. जैसे मैंने बोला पहले भी कि आप 8 से 12 घंटे सेम posture में हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेट पे सोने की आदत है तो आप मुझे है। रात भर पेट पे ही सो रहे हो. So that's the, let me tell you, that's the worst position to sleep. So you should be changing that. So and why it is bad? क्योंकि जब आप पेट पे सोते हो तो आपकी नेक एक्सट्रीम ऐसी होगी, आप ऐसे करके तो नहीं सोगे ना पेट पे, है ना. इन दैट वे योर ब्रीदिंग विल गेट हैम्पर्ड. सो आप इधर राइट, एक्सट्रीम राइट रख के सोगे या एक्सट्रीम लेफ्ट रख के सोगे, एंड देन आपका हिप्स का भी इधर उधर, पैर इधर उधर रख के सोगे. सो दैट्स द वर्स्ट पोजिशन इन टर्म्स ऑफ नेक ऑल्सो, स्पाइन ऑल्सो.
And so, what should be right posture to sleep with? Most common question nowadays. सो अगर आप स्ट्रेट देखो, आदत जिसके जैसे सोने की होती है तो मैं उसी में मॉडिफिकेशन बताती हूँ, एक्सेप्ट फॉर टमी स्लीपिंग पोजीशन। अगर किसी को सीधा सोने की आदत है बैक पे ऐसे फ्रंट, सो मैं उनको बोलती हूँ कि आप पिलो आपकी बहुत ऊंची नहीं होनी चाहिए, एंड आप नीज़ के नीचे एक पिलो, पतला सा पिलो आप डाल सकते हैं ताकि आपके स्पाइन पे से प्रेशर हट जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोगों का लॉर्डोसिस कर्व, पीछे जो स्पाइन का कर्व होता है वो बढ़ा हुआ होता है, तो हम जो नी के नीचे पिलो बोलते हैं उनको लगाने को, तो उससे उनका बैक पे प्रेशर रिलीव होता है, तो इवेंचुअली बैक पेन कम होता है सोते टाइम। ठीक है, अब किसी को साइड में सोने की आदत है तो मैं उसे ये नहीं बोलूँगी नहीं तुम सीधे सो। तो साइड में कैसे सोना है? तो साइड में यू कैन यूज़ पिलो इन बिटवीन योर नीज, एंड यू कैन यूज़ सर्वाइकल पिलोज ऑल्सो फॉर स्लीपिंग। किसी को नेक इशू है तो उनको नहीं समझ में आता है कि कैसा पिलो की हाइट क्या होनी चाहिए, तो आई सजेस्ट देम कि यू कैन यूज़ फॉर गो फॉर सर्वाइकल पिलोज। तो मेमोरी फोम पिलोज रहते हैं, सो दे आर लाइक नेचुरली कर्व्ड एज पर योर नेक, सो वो सीधे सीधे आप वो ले लो एंड दैट यू कैन यूज़। एंड देन मैट्रेसेस ऑल्सो, अब जैसे कई बार लोगों की मैट्रेसेस उनको चेंज करना है, वैसे तो अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम मेरे पास आए हो कि मुझे बैक पेन हो रहा है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी तो मैट्रेस चेंज कर लो, है ना, बिकॉज इट इज़ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। बट इफ़ यू आर आस्किंग मी कि भाई मुझे मैट्रेस चेंज करना है और मैट्रेस मेरा बहुत ख़राब है, सो देन आई सजेस्ट कि यू गो फॉर ऑर्थोपेडिक मैट्रेस। सो मैट्रेस का क्योंकि कितना हाइट होना चाहिए, इट शुड नॉट बी वेरी सॉफ्ट, इट शुड नॉट बी वेरी हार्ड ऑल्सो। सो एकदम जो हार्ड सरफेस पे सोने के लिए भी बोलते हैं, तो दैट में ऑल्सो नॉट वर्क फॉर एवरीबडी। कई लोगों को ज़मीन पे सोने से या हार्ड सरफेस पे वो कॉटन का पतला सा डाल के उससे भी दर्द बढ़ जाता है। सो इट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, क्योंकि अभी कोई बहुत लीन एंड थिन है उसको तो चुभेगा इतना कि उसको वैसे ही पेन कंफर्टेबल नहीं होगा। सो वो राइट हाइट ऑफ मैट्रेस वगैरह कैसा होना चाहिए, दैट ऑल्सो वी एडवाइज। So that's how it can help. Simple adjustment can, and these are like long term investments and long term adjustments. आप पिलो यूज़ कर रहे हो तो that goes for months and years, so you can continue using it. So, ma'am, the way we sit and move around throughout the day can actually hamper or make our mood better, and again hamper our productivity and make it better. Do you think that definitely makes a difference, or it doesn't affect that? It makes a lot of difference. So like we say, if you are having bad posture, so that will eventually lead to poor, like strain on your body and joints, that can eventually lead to pain, and that will eventually lead to stress and anxiety, and that will eventually lead to your mood upset, and in short it will reduce your productivity. So these are interconnected issues. For example कि कल तुम्हें रात में दर्द हो रहा था, तुम सो ही नहीं पाए रात भर, अब तुम सोए नहीं हो, अब तुम्हें आज ऑफिस आए हो, तुम्हें आज पूरे दिन काम करना है, सो हाउ मतलब व्हाट विल बी योर प्रोडक्टिविटी? अगर आपकी नींद ही नहीं पूरी हुई है, मतलब आपके माइंड को, बॉडी को रिलैक्सेशन ही नहीं मिला है, फिर नेक्स्ट डे पूरा एग्जर्शन आप लोगे, सो यू विल बी इरिटेबल, राइट? प्रोडक्टिविटी आप शायद 10 काम कर सकते थे तो शायद 5 ही कर पाओ, काम तो तब भी करोगे आप, लेकिन शायद 5-6 ही कर पाओ। सो दैट्स हाउ इट विल अफेक्ट डेफिनेटली। What should people consider while designing their workspace, be it an office workspace या work from home setup, दोनों में से कोई भी, जो वो डिजाइन कर रहे हैं उन्हें क्या पॉइंट्स माइंड में रखने चाहिए कि उन्हें लॉन्ग टर्म में वो कंफर्टेबल रहे एंड उनका पोस्चर ना खराब हो? So, firstly, we'll talk about work from home. So, work from home में because you cannot invest so much, right? So, अभी जैसे कई सारे लोगों का प्रोफेशन ऐसा होता है, they are their companies like in some other city and they are like completely work from home. उनको ऑफिस जाना ही नहीं है. So, better they invest on good chairs and tables. So, that is the basic requirement. So, chair table में वही है कि ergonomic chair रहेगी, adjustable table रहेगी, तो बस उतना ही उनको investment करना है, ठीक है? And if we are talking about any IT company or good company that has lot of employees working and proper infrastructure and everything, if they are developing, so वहाँ पे भी again ये this will be common, ergonomic, good ergonomic chairs, the adjustable tables, जैसे हमने बात करी कि adjustable standing tables also, and then there should be good ventilation also, so that they are like relaxed and everything. Then the lighting also affects, because lighting also strains on your eyes also, so that also should be good. And then a lot of companies, like I suggest to companies, because I do take a lot of ergonomic sessions in IT companies also, that is more of awareness sessions, so I advise these kind of ergonomic suggestions or changes to the companies. So one of the suggestion is कि most of the time क्या होता है ना कि जैसे
तो मेरे पास आए, मैंने तुमको एडवाइस किया कि ये त्रिलोचन हर घंटे तुमको ब्रेक लेना है एंड यू हैव टू चेंज योर पॉस्चर, बट क्योंकि तुम्हारी आदत में नहीं है तुम्हें याद ही नहीं रहेगा. सो हाउ टू डू इट, व्हाट इज़ द वे टू डू इट. तो स्टार्टिंग में मैं उनको बोलती हूँ आप अलार्म लगाओ. अब जैसे इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू ऑफिस तो मैं बोलूँगी तुम अपने मोबाइल में अलार्म लगाओ, एवरी आवर वो बजेगा, तो देन यू विल गेट टू नो कि आई नीड टू चेंज माई पॉस्चर शुरू में. एंड धीरे धीरे वो जब फीडबैक तुम्हारे दिमाग में आता जाएगा तो इट विल इवेंचुअली लीड टू अ हैबिट, धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, प्रोवाइडेड इफ़ यू वांट टू डू इट. ठीक है. एंड इफ़ इन आई टी कंपनीज़ को मैं ऐसा एडवाइस करती हूँ, आजकल लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर देयर कि 1 घंटे का टाइमर है, 1 घंटे का काम खत्म होगा, स्क्रीन आपके ब्लैंक हो जाएगी एंड स्क्रीन पे आ जाएगा इट इज़ लाइक एक्सरसाइज टाइम और टेक अ ब्रेक फॉर फ्यू मिनट्स. So screen will be blank. So then you get to know. So like that companies can incorporate so that people can take breaks in between. बाकी इफ़ यू आर गोइंग टू ऑफिस तो वैसे भी ब्रेक हो जाता है, चाय नाश्ते का ब्रेक हो जाता है, देन लंच ब्रेक हो जाता है, बीच में कॉफ़ी ब्रेक हो जाता है, देन थोड़ा चिट चैट हो जाती है, तो ऑफिस में तो हो ही जाता है, बट घर में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो घर में दे कैन पुट अलार्म्स एंड लाइक दैट. मैम आप जब ये सेशंस लेते हैं, सो देर आर अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर इंटरेस्टेड बिकॉज दे आर फेसिंग दीज इश्यूज, बट बहुत सारे होते हैं कि यार ये मेरे लिए नहीं है क्योंकि मुझे तो पेन नहीं हो रहा. तो वो आप कैसे टैकल करते हैं कि जस्ट बिकॉज पेन नहीं हो रहा है, इज इट दैट आई डोंट हैव एन इशू, और इट इज जस्ट दैट कि वो प्रोलॉन्ग्ड होगा, कभी ना कभी होगा. तो वो आप कैसे उन्हें एड्रेस करते हैं कि जस्ट बिकॉज तुम्हें अभी पेन नहीं है तो दैट डजंट मीन दैट योर पोस्चर इज राइट. योर पोस्चर कैन स्टिल बी रॉन्ग, बट इन द फ्यूचर इट विल गिव यू इश्यूज. तो वो आप उस चीज को कैसे एड्रेस करते हैं? हाँ, सो इट इज़ मोर ऑफ अवेयरनेस. क्या होता है ना कि जब जिनको दर्द हो रहा है या जिनको कभी पास्ट में दर्द हुआ है, सो दे नो द पेन. सो जब भी मैं सेशंस के लिए जाती हूँ या फिर कंसल्टिंग के लिए जाती हूँ आईटी कंपनीज़ में, तो वो लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि बहुत दे ध्यान से हैव सुनते लॉट हैं. ऑफ क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग. एंड पीपल हु आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ पेन, सो दे आर लाइक कि ये सेशन क्यों. सो हमेशा वो कहते हैं ना, कहावत है या इट्स प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर. सो इट इज़ लाइक दैट कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग इन आईटी, है ना, अभी मैं तुम्हें ये थोड़ी कहूँगी कि तुम प्रोफेशन चेंज कर दो. तुम प्रोफेशन थोड़ी चेंज करोगे, तुम्हारा लाइफ लॉन्ग यही प्रोफेशन रहने वाला है ना. तुम यू विल बी वर्किंग ऑन लैपटॉप इन दिस थिंग, तो मैं तुम्हें वो एडजस्टमेंट सिखाऊंगी, है ना. सो अगर तुम खराब पोर्शन में काम कर रहे हो, तुम्हें आज पेन नहीं हो रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो होगा ना. सो कभी ना कभी वो होने ही वाला है. सो बेटर है कि आप अवेयर हो जाओ, एटलीस्ट छोटे छोटे चेंजेस आप करो. जिसको पेन है उसके लिए फिर बहुत सारी चीज़ें करने को, जिसको पेन नहीं है उसके पास सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें करने को, एंड उतना कर लिया है वंस इट कम्स इन हैबिट्स, सो यू कैन प्रिवेंट लॉट ऑफ इश्यूज़. एंड ट्रस्ट मी, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वी कॉल इट मैकेनिकल पेन. मैकेनिकल मतलब उसको कुछ रीज़न नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल बैक पेन है, देर आर मल्टीपल रीजन्स फॉर बैक पेन, है ना. सो बैक पेन इज़ नॉट अ डायग्नोसिस, लो बैक पेन इज़ नॉट अ डायग्नोसिस, इट जस्ट अ सिम्टम. ठीक है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं. सो अगर मैकेनिकल बैक पेन है, मैकेनिकल बैक पेन का मतलब है कि उसको कुछ इंजरी नहीं है, उसको कोई स्लिप डिस्क नहीं है, उसको हड्डियाँ ठीक है, उसकी एवरीथिंग इज़ गुड, सिर्फ पॉस्चर खराब पॉस्चर की वजह से या फिर सो कॉल्ड वीक मसल्स के वजह से उसको पेन हो रहा है. सो दैट कैन बी इम्प्रूव्ड. लेकिन अगर वो इम्प्रूव नहीं हुआ तो वही मैकेनिकल बैक पेन कैन लीड टू स्लिप डिस्क लेटर ऑन, क्योंकि वो धीरे 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 आपकी स्पाइन को अफेक्ट करेगा, आपका डिस्क को अफेक्ट करेगा, स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करेगा. सो इवेंचुअली इट में रिजल्ट इन स्लिप डिस्क, या फिर कुछ आपको इंजरी, आपने हैवी वेट्स वगैरह उठा लिए तो वो स्लिप डिस्क आपको जो नहीं होने वाला था वो हो जाएगा, बिकॉज योर मसल्स आर वीक, योर डिस्क इज़ वीक. सो लाइक दैट. सो इट इज़ ऑलवेज प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर. सो मैम अब एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना है मैंने. माई हाइट इज 6'4", 6 feet 4 inches. एंड ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन मुझे बहुत बार पूछा जाता है कि यार तेरी हाइट इतनी ज़्यादा है, तुझे तो बहुत बैक इश्यूज होगा या फ्यूचर में होगा, या तुझे ये प्रॉब्लम होता होगा या पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम होगा. सो एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव एनी पेन, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग, बट आर देयर एनी टिप्स और आर देयर एनी सजेशंस दैट यू वुड लाइक टू गिव to me as well as everyone who's anyone who's listening to this podcast कि ये normal हम चीज़ें अपने day to day life में add कर सकते हैं in terms of exercises और posture that that can help us prevent any pain in the future. Yes, definitely. So you have a very good height. So what you can do is, again, just summarize. You can invest in good ergonomic chair, so that will be adjustable as per your height. Then
You can use proper, like you can shuffle between sitting and standing posture, so you can also use standing tables, and just keep changing your position, just move around in between, and you can put reminders for that if you don't remember in initial time. And then you can have a good diet with all the supplements, so that you don't have any deficiencies, so that you can fight any kind of pain at your level. And these are the simple things. And for the audience also, they can just, if they follow one or two things out of these, so they can see a huge difference in their life, the posture issues and any kind of pains if they are facing. And if you are having any issues, like any issues starting like neck pain and back pain or any kind of pain, and it is not going on its own in like 5 to 7 days, then it's time to visit a doctor and you can address it. Otherwise it may lead to chronic pains, and the problem may increase. Thank you for being here, ma'am, and giving us all the insightful suggestions and posture correcting therapies that everyone can follow without spending a lot on, these fancy gadgets and any of these belts and everything that's available online, because that is not definitely going to help them in the long run. It is just a temporary thing. So thank you for giving us all the insights. So, ma'am, I'll be putting in all your details as well. That's your number and other details where our viewers can reach out to you if they are facing any of the chronic and the acute pains that we've got to know today. So, I'm sure they'll be in good hands. So, thank you so much for being here. सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर. सो आज आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, सो दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस. बहुत लोग को ये सवाल होते हैं डे टू डे प्रैक्टिस में भी. बहुत सारे लोग पेशेंट्स मेरे सवाल पूछते हैं, तो आई एम श्योर कि आज बहुत सारे व्यूअर्स को भी उनके क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा. एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर ये टिप्स वो फॉलो करेंगे, एंड it will change their life. So I'll be more than happy. So even I want to work a lot on awareness, because बहुत सारे लोगों को आजकल ये इश्यूज़ हो रहे हैं. दे आर प्रिटी कॉमन, एंड मोस्ट 70 to 80% issues are preventable. So people can prevent those issues. Thank you so much.